Hello students, in today's lecture we will be doing exercise 5.2 that is based on the nth term of an arithmetic progression. Nth term of arithmetic progression, if A is the first term and D is the common difference, then nth term is A plus में n minus 1 into D. This is the formula of nth term. इसको मान लो let in any AP there are n number of term. n number of term है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? L से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं लास्ट टर्म से. ओके, तो ये इसको हम nth टर्म a plus n minus 1 into d, इसको हम किसी AP की जर्नल टर्म भी बोल देते हैं. ठीक है, जो ये एक्सरसाइज है 5.2 it is based on this formula. Okay, let's come to the exercise and see first part of it. First question, first part. A, D, n number of term or nth term. If in an AP A is 7, D is 3 and number of term is 8. Number of term is 8. Then you have to find the 8th term, nth term. n कितना है? 8. तो n की जगह पे 8 यानी कि 8th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. अब देखिए फिर nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे, क्या होगा? a plus n minus 1 into d. नाउ पुट द वैल्यूज. n कितना है? 8. तो यानी कि आपको 8th टर्म बतानी है. 8th टर्म a is 7 प्लस में n कितना? 8 minus 1 8 minus 1 into d is 3. That is equal to 7 plus में 8 minus 1 कितना? 7 into 3. So 7 plus 7 3 is 21. That is equal to 28. समझ में आ गई ना? इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट you can do on your own. Let's see the third part. In this you have to find the first term. You have to find the first term. D is given. D is minus 3. Number of term is 18 and 18th term nth term n कितना है? 18. तो ये 18th टर्म है भाई. 18th टर्म कितनी दे रखी है? -5. nth टर्म दे रखी है ना, n कितना है? 8. तो यहाँ पे सॉरी 18. तो यहाँ पे क्या है? 18th टर्म. 18th टर्म कितनी होगी भाई? -5. ये चीजें दे रखी है. यू हैव टू फाइंड द a. फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी. a रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म. तो फार्मूला यू नो, nth term is equal to a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. और ये nth term दे रखी है, that is -5. Now put nth term is -5. a you have to find out plus में n is 18. 18 minus 1 सीधा लिख सकते हैं हम. 18 minus 1 17 into d is -3. d is -3. अब कितना हो गया? -5 a प्लस माइनस -17 3 is 51. इसको इधर ले आइए तो a is equal to ये गिरा के प्लस हो गया. -5 प्लस में 51 कितना आ गया? 46. 46 is equal to a. तो a is equal to 46. This is our answer. Is it clear? Now let's see one more part of this question. In this one, first term is given. This is fourth part. First term is minus 8.9, 18.9 and d is given. D is 2.5. Or nth term is given. Nth term is 3.6. You have to find the value of n. n find out करना है. यानी कि which number of term is 3.6? कौन से नंबर की टर्म है? n find out करना. You know the formula. Put the values in the formula. So nth term a, what is a? Minus 18.9 plus में d n minus 1 into d, and you have to find out n minus 1 into d. d is 2.5. और ये nth term किसके इक्वल है? nth term is 3.6. nth term is 3.6. अब इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी. नाउ टेक -18.9 टू राइट हैंड साइड. दिस इज n minus 1 into 2.5. दिस इज इक्वल टू 3.6 और ये उधर जाके प्लस का
18.9 plus 18.9. Okay, now add them. 9 plus 6 15, 1 कैरी हो गया, तो 8 plus 3 11, 1 12 और ये 2. Now n minus 1 into 2.5, take 2.5 on the other side. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और ये कितना 25 9 जा 25 9 जा कितने होते हैं 25 9 जा 225. अब दोनों में एक से पहले डेसिमल है तो दिस इज 9. तो टेक -1 टू अदर साइड, दिस इज 9 n minus 1 is equal to 9, तो n is equal to +1, तो n is equal to 10. This is our answer. Is it clear? Now let's see the next question. Now second question, second part. 11th term of this AP, you have to find the 11th term. ये AP दे रखी है. अब AP इनमें से ऑप्शन बतानी है कौन सी 11th टर्म है. In this AP क्या है भाई? AP is -3, -1.2, 2 and goes on. अब इसमें देखिए भाई फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म -3. D क्या है, D क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. किसी भी टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है. तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है -1/2, इसमें से माइनस करना है किसको -3, तो कितना हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, -1/2 प्लस 3 कितना हो गया भाई 5/2. दिस इज 5/2 एंड n कितना है 11th टर्म फाइंड आउट कर दिए, तो n इज इक्वल टू n इज 11. n इज 11. अब देखिए 11th टर्म, n टर्म का फार्मूला लिखे a plus n minus 1 into d. 11th term a 11 that is equal to a is -3, -3 प्लस में 11 minus 1 कितना होगा 10 into d. d कितना है 5/2. 2 1 जा 2, 5 जा -3 प्लस 5 5 जा 25. कितना आ गया, दिस इज 22. तो 22. तो आंसर कितना है B. आंसर इज B, दैट इज 22. ओके, now let's see third question. You have to find the missing term in the boxes. Missing term in the boxes of given APs. ठीक है भाई, ये APs में है. अब इसमें देखते हैं. अब इनमें क्या मान लेते हैं, let A is the first term and D is the common difference. क्या मान लेते हैं, let A is first term and D is common difference. D is common difference. तो इसमें देखिए भाई, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म. तो सेकंड टर्म कितनी दे रखी है, सेकंड टर्म 30, और ये कौन से नंबर की टर्म है, फोर्थ टर्म. कौन सी है, फोर्थ टर्म. तो सेकंड और फोर्थ टर्म दे रखी है, आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालनी है. इज इट क्लियर? अब देखिए भाई, सेकंड टर्म इज गिवन. सेकंड टर्म क्या होती है, a plus 2 minus 1 that is d is equal to 30. फोर्थ टर्म क्या होती है, फोर्थ टर्म इज a plus 4 minus 1 कितना 3d that is equal to 3. Let this is equation first, this is equation second. You have two equation, variables are a and d, तो pair of linear equation in two variable, solve it. तो क्या करें, subtracting a, कौन सा मेथड यूज होगा, एलिमिनेशन मेथड. तो subtract equation second from first. Subtracting equation second from first. सब्ट्रैक्ट कीजिए में माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया. d माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 कितना होगा 10. तो d इज इक्वल टू -2 इंटू d, तो 10 बाय -2, 2 1 जा 2, 5 जा कितना हो गया 5 बाय -1 -5. d कितना हो गया -5. पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट. पुटिंग
d is equal to -5 in इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस d, d कितना है -5, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस में 5 दैट इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू, d की वैल्यू -5, a की वैल्यू 18। तो फर्स्ट टर्म बतानी है, फर्स्ट टर्म तो आगे में, फर्स्ट टर्म दैट इज a दैट इज इक्वल टू 18। ये कौन से नंबर की टर्म है? थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी बतानी है। थर्ड टर्म इज a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू d, तो 3 माइनस 1 कितना 2d, a कितना है 18 प्लस में 2 इंटू d कितना है -5, तो कितना आ गया 18 प्लस माइनस माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, तो ये तो आ गया 18 और ये कितना आ गया 8। इज इट क्लियर? सेम इसी तरीके से इसको करना। इसमें क्या देगा? फर्स्ट टर्म दे रखा है और 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? फर्स्ट टर्म दे रखी है और 6 टर्म दे रखी है। तो d फाइंड आउट कर लो, फिर सभी टर्म्स फाइंड आउट कर लो। इसमें देखिए भाई, लेट a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कितना है भाई? -4, d कितना है, सॉरी ये कौन सी है? 6 टर्म। तो 6 टर्म क्या होता है? a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 6। a कितना है? -4, पुट करो, -4 प्लस में 5d दैट इज इक्वल टू 6, टेक दिस टू अदर साइड, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10, तो d इज इक्वल टू 5 तो d टू a -4। तो कोई भी टर्म बता दो। सेकंड टर्म क्या होगी? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बतानी है। एक टर्म बता देता हूं मैं, सेकंड। सेकंड क्या होगा? a प्लस d, a कितना है भाई? -4, d कितना है 2, कितना होगा? -2। ठीक है, बाकी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म यू कैन फाइंड ऑन योर ओन। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द फिफ्थ पार्ट। अब इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इसमें सेकंड टर्म दे रखी है और सिक्स्थ टर्म दे रखी है। तो इनसे क्या फाइंड आउट कर लेंगे? a एंड d, उसके बाद सभी को हो जाएगा। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस, d इज कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या देगा? सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होता है? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, यानी कि a प्लस d दैट इज इक्वल टू 38। और ये कौन सी है? सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म इज a प्लस 5d, a प्लस 5d, a प्लस 5d कितना है? -22। सिंप्लीफाई करें दोनों इक्वेशंस को, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करें। लेट दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो सबट्रैक्टिंग यहां लिख दो, subtracting equation second from first, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, कैंसिल हो गया। d -5d कितना आ गया? -4d दैट इज इक्वल टू 38 प्लस में 22, 8 to 10 और ये 6। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 60/-4, 4 से 15, तो कितना आ गया? -15। d is -15, तो put this value in equation number first. Putting d is equal to -15 in equation first, तो कितना आ गया? a प्लस में -15 यानी कि a -15 is equal to 38, तो a is equal to 38 प्लस में 15, 8 5 13, 8 5 13 और 3 1 4 1 5, 53। फर्स्ट टर्म ये आ गई। फिर ये क्या? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, a कितना है भाई? 53 प्लस 2 इंटू d इज -15, व्हाट इज इट? 53 माइनस 30, तो कितना आ गया भाई? 53 माइनस 30, 53 माइनस 30 कितना हो गया भाई? 23। ये थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं?
चलो फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिफ्थ टर्म आप अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। a कितना है भाई, व्हाट इज a, 53 प्लस में 3 इंटू d माइनस 15, 53 माइनस 45, 53 माइनस 45 कितना आ गया, 8, कितना आ गया 8। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ टर्म यू कैन फाइंड आउट a प्लस 4d। फोर्थ क्वेश्चन, which term of this AP is 78? तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 3, कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो हमें ये बताना है इस AP में 78 कौन से नंबर पे आती है टर्म। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, लेट इट इज nth टर्म, लेट इट इज nth टर्म। nth टर्म है तो nth टर्म का फार्मूला है, वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है, AP क्या है भाई, 3, 8, 13, 18। A कितना है भाई 3, D कितना है A2 माइनस A1, A2 इज 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, A D। ना लेट nth टर्म इज 78। जो 78 है वो क्या मान लिया हमने, nth टर्म। nth टर्म का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 दैट इज इक्वल टू 78। सिंप्लीफाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ n। टेक 3 टू अदर साइड, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 कितना होगा ये 75, 5 अदर साइड तो n माइनस कितना आ गया 15, कितना होगा भाई 15। तो n इज इक्वल टू टेक माइनस 1 टू प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 60, n इज इक्वल टू 60। तो ये कौन से नंबर की टर्म होगी, ठीक है। तो देयरफॉर 78 इज 16 टर्म, ये 16, ठीक है। अब इसी तरह का सेम इसी तरह का ये है, राइट द नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी। इस एपी में कितने टर्म होंगे, अगर मान लो इसको हम ये कह देते, ये कह देते भाई इस एपी में ये लास्ट टर्म है, इस एपी में कितने टर्म है, तो सेम बात है, ए पता है डी पता है, इसको क्या मान ले nth टर्म मान ले, तो n की वैल्यू निकाल ली भाई 16, ये 16th टर्म है, तो टोटल टर्म कितनी होगी इसमें 16 होगी। ऐसा ही क्या है इसमें एपी दे रखा है, ए क्या है व्हाट इज ए 18, डी क्या है A2 माइनस A1 व्हाट इज A2 15 and half माइनस 18, 15 टू जा 30 प्लस 1 31 बाय 2 माइनस 18 बाय 1 एलसीएम 2, या सीधा निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं किया, ठीक है। 31 माइनस 2 से 18 टू जा 36 कितना आ गया माइनस 5 बाय 2, डी आ गया। लेट दिस इज nth टर्म, जो लास्ट टर्म है ना, हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है। अब हम ये निकालने में ये कौन से नंबर पे आती है, ये निकालने तो उतनी ही टर्म हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो लेट nth टर्म इज माइनस 47, nth टर्म इज माइनस 47। nth टर्म का फार्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 47। a कितना है 18 प्लस में n माइनस 1, n you have to find out n minus 1 into d, d कितना है minus 5 by 2 that is equal to minus 47. Now take 18 to other side, n minus 1 into minus 5 by 2 that is equal to minus 47, और ये उधर जाके क्या होगा minus 18, 7 plus 8 15, 4 plus 1 5 5 1 6 minus 65, तो n minus 1 into minus 5 by 2, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल माइनस 2 बाय 5। भाई 5 बाय 2 है, माइनस का तो माइनस ही रहेगा, 5 बाय 2 क्या होगा 2 बाय 5, तो 5 से 13 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 13 टू जा 26, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27।
n इज इक्वल टू 27। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म पूछा था, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आर 27। इज इट क्लियर? नो, लेट्स सी, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। क्या इस एपी में कहीं पे -150 आता है क्या, ये चेक करना है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जो जब हम टर्म्स को काउंट करते हैं किसी एपी में, तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा बीच में तो नहीं आ गए 2.5 टर्म या 3.5 टर्म, 3 and 2 बाय थर्ड टर्म, ऐसा तो नहीं आता। फ्रैक्शंस में नंबर ऑफ जो टर्म है वो किस में होती है, नेचुरल नंबर्स में होती है, फ्रैक्शंस में नहीं होती। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। अगर फ्रैक्शन में आ जाता तो यानी कि वो उस एपी में टर्म आती ही नहीं है। अब इसमें देखिए, अब इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, 11, डी क्या है, a2 minus a1, a2 is 8 minus 11 that is equal to -3। ठीक है, तो हमें ये पूछा है भाई -150 इसमें आती है या नहीं, तो क्या करें, लेट दिस इज nth टर्म, let nth टर्म इज -150। तो n की वैल्यू अगर मान लो ये कोई 15th नंबर पे आती है या 16th पे आती है या 18th पे आती है, तो बोलेंगे यस इट इज द टर्म ऑफ दिस एपी। लेकिन अगर ये आता है ये 15 and 1/2th टर्म है, तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, nth टर्म a plus n minus 1 into d that is -150। a कितना है भाई, 11 प्लस में n minus 1 into d is -3, दिस इज इक्वल टू -150। 11 उधर जाके n minus 1 into -3 -150, और ये उधर जाके -11, कितना हो गया, -11 हो गया। तो कितना हो गया भाई, ये 1, कितना हो गया, ये 5 + 1 6, और ये 160 माइनस का 161, ये -3 उधर जाके क्या हो गया भाई, डिवाइड n minus 1 into -3, माइनस से माइनस, ये मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 161/3। तो n इज इक्वल टू -1 उधर जाके क्या हो गया, +1, कितना हो गया, +1। तो भाई इसका एलसीएम कितना आ गया, बाय 1, एलसीएम हो गया 3, 161 प्लस में 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, कितना हो गया, 164/3। देखिए कितना हो गया, 3 से 3 5 जा 15, 1 बच गया 14, 3 4 जा 12 एंड 2/3। तो जो 150 आता है, इसमें अगर देखें 150 कौन से नंबर पे आता है, 54 एंड 2/3 नंबर पे आता है। तो वह हमें ये पता है, या तो 54 टर्म होंगी, या मतलब 54 टर्म हो सकती हैं, या 55। तो 54 एंड 2/3 तो नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी फ्रैक्शन। तो ये आ रहा है भाई, इसमें -150 कौन से नंबर पे आ रहा है, 54 एंड 2/3 पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी in fractions, therefore -150 is not the term of given AP। इस AP में -150 कहीं नहीं आता, -150 इस AP में कहीं नहीं आता। ओके, now let's proceed to the next question। Find 11 term of an AP whose find 31st term of an AP whose 11 term is this one and 16th term is this one। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो भाई इसमें क्या है, let A be the first term, A be the first term and D is common difference। तो भाई क्या दे रखा है इसमें, 31st term हमें फाइंड आउट करनी है, 11th term is 38। 11th term क्या है, a plus 11 minus 1 into d that is 10d is equal to 11th term is 38। now next
फिर उसके बाद आता है 16th टर्म। 16th टर्म इज a प्लस 16 माइनस 1 कितना होगा 15d, दैट इज इक्वल टू 73। लेट दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। क्लियर? ये फर्स्ट, ये सेकंड। दोनों को सोल्व कीजिए, a और d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड 31st टर्म। a और d की वैल्यू पता है तो 31st टर्म यू कैन फाइंड इट। नाउ लेट्स सी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये भी a है, ये भी a है, तो एलिमिनेशन मेथड विल बी इजी। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट कीजिए भाई, a माइनस a कैंसिल हो गया, 10d माइनस 15d कितना हो गया माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 73 और प्लस का 38, तो 30 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3। Now d is equal to minus 35 by minus 5, minus 5 हो जाए 5 7 जाए, that is 7। d कितना हो गया 7, d 7 आ गया। इस वैल्यू इसमें फर्स्ट में पुट करते हो d 7, तो पुटिंग d is equal to 7 in इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो गया a plus 10 into 7 is equal to 38, तो a plus 70 is equal to 38, a is equal to 38 minus 70, तो कितना बड़ा माइनस का है, तो 70 में से 38 माइनस कर दो, 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 3, माइनस 30। तो वह d7 आ गया, a माइनस 32 आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है 31st टर्म। तो 31st टर्म का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 31 माइनस 1 कितना 30d, a इज माइनस 32 प्लस में 30 इंटू डी, डी कितना है 7, तो कितना आ गया माइनस 32 प्लस में 0 7 3 सर, इज इट क्लियर, माइनस 32 प्लस का 210, तो क्या आएगा 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया था तो यहाँ क्या है 0 हो गया, इधर से कैरी कर दिया 10 10 माइनस 3 7 178, तो भाई 31st टर्म क्या आ गई 178। इज इट क्लियर? If the third term and ninth term of AP are 4, third term is 4 and ninth term is minus 8 respectively. ठीक है, third and ninth term are these. You have to tell which term of this AP is 0. 0 कौन से नंबर पे आएगी इस AP में? तो क्या मान लेंगे 0 को हम nth टर्म मान लेंगे, तो ये बताना है 0 कौन से नंबर की टर्म होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and d। तो थर्ड टर्म इज 4, थर्ड टर्म इज 4, इसमें लिख लेंगे लेट a and a be the first term and d is common difference। तो थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d, थर्ड टर्म इज 4, और नाइन टर्म इज a प्लस में 9 माइनस 1 कितना होगा 9 माइनस 1 8d, दैट इज इक्वल टू माइनस 8। इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, ठीक है। तो इसमें से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। भाई इसको यहां भी लिख सकते हैं, यहां जहां स्पेस हो वहां लिख लो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस a कैंसिल हो गया, 2d माइनस 8d कितना हो गया माइनस 60, 4 प्लस 8 12, तो d इज इक्वल टू 12 बाय माइनस 6, माइनस 6 मल्टीप्लाई था, इधर आगे डिवाइड हो गया, 6 1 जा 6 2 जा, 2 बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, d कितना आ गया माइनस 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, putting d is equal to minus 2 in equation first, तो a plus 2 into d कितना है minus 2, this is equal to 4, तो a कितना प्लस माइनस माइनस 4 that is equal to 4, तो a is equal to ये उधर ले जाइए 4 प्लस में 4 that is equal to 8, ठीक है। d minus 2 और a 8 आ गया,
तो ये बताना है जीरो कौन से नंबर पे आती है टर्म। तो क्या करें, लेट nth टर्म इज जीरो। तो क्या करें, लेट nth टर्म इज इक्वल टू जीरो। और nth टर्म क्या है भाई, a प्लस n माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू जीरो। a कितना है 8 प्लस में n माइनस वन इंटू डी, डी इज -2, d is -2, this is equal to 0। अब देखिए टेक 8 to other side, तो n minus 1 into -2 that is equal to -8। now -2 bring this minus n minus 1 into -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो n minus 1 is equal to -8 by -2, माइनस से -2 बन जाए 2 4 कितना आ गया 4। तो n इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1, n इज इक्वल टू 5। तो जीरो क्या होगी, जीरो इज द फिफ्थ टर्म। तो जीरो इज द फिफ्थ टर्म, ठीक है, जीरो फिफ्थ टर्म, ठीक है। चलो इसमें देखिए, द 17th टर्म ऑफ एन AP exceed the 10th term by 7। exceed the 17th term exceed the 10th term by 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना एक्सीड कर रही है, कितनी ज्यादा है 7, कितनी ज्यादा है 7। तो आपको बताना है कॉमन डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट a be the first term and d is common difference, d is common difference, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म इज a, तो 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म ज्यादा है किससे, 10th टर्म से, कितनी ज्यादा है 7, यानी कि a 17th माइनस 10th टर्म, 17th जो टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है 7। तो डी बताना है, 17th टर्म ज्यादा है 10th टर्म से 7, तो 17th टर्म माइनस 10th टर्म इज 7। तो कितना 17th टर्म क्या होता है, a प्लस 17 माइनस 1 16d, माइनस में 10th टर्म क्या है, a प्लस 10 माइनस 1 9d दैट इज इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करें, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d दैट इज इक्वल टू 7। a माइनस a 16d माइनस 9d कितना होगा 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू 7 बाय 7, तो d इज इक्वल टू 1। क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। इज इट क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के लेक्चर में, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल टेक अप इन नेक्स्ट लेक्चर। Let's see the 11th question. Which term of this AP will be 32 more than its 54th term? इस AP की 54th टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन से नंबर की टर्म होगी। इस AP की 54th टर्म से ज्यादा, 54th टर्म से 132 ज्यादा, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो व्हाट विल बी दैट टर्म। तो इसमें AP क्या है, AP इज 3 15 27 39 एंड गोस। फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 3 दैट इज 12। तो हमें क्या बताना है, 54 टर्म से 132 मोर देन 54 टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड 54 टर्म, तो फाइंड आउट करेंगे 54 टर्म। तो nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 54 टर्म a कितना है 3, प्लस में 54 माइनस 1 कितना होगा 53, d कितना होगा 12। 3 प्लस 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63, तो कितना होगा 639। तो 54th टर्म क्या है भाई, 54th टर्म इज 639। तो हमें ये बताना है इससे 132 ज्यादा कौन से नंबर पे आती है। तो हम मान रहे उसको क्या मान लेते nth टर्म। तो लेट nth टर्म इज
54th टर्म प्लस पे 132, जो 54th टर्म प्लस में 132, 54 से 132 ज्यादा को हम उसको nth टर्म मान लेते हैं और n की वैल्यू निकालते हैं कि भाई जो 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म मान लेते हैं हम, nth टर्म मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, nth टर्म। nth टर्म क्या है, a plus n minus 1 into d, that is equal to 54 टर्म is 639 plus with 132, कितना हो गया ये, put the value of a is 3 plus n minus 1 into d is 12, n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, कौन से नंबर पे, ये आता है, कितना हो गया ये 9 to 11 3 3 6 7 और ये 771, 54 से 132 ज्यादा का 771, हमें ये बताना 771 कौन से नंबर की टर्म है। हमने क्या मान लिया, n टर्म, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, तो 3 को उधर ले जाइए, n minus 1 into 12 is equal to 771, 3 उधर जाके माइनस, कितना हो गया ये 768, 12 उधर जाके डिवाइड, n minus 1 is equal to 5, ठीक है, 12 1 जा 12, 6 जा 12 6 जा कितना हो गया 72, 72 कितना हो गया 448, 12 4 जा 48, तो n minus 1 is equal to 64, तो 64 minus 1 उधर जाके प्लस 1, n is equal to 65, n is equal to 65, तो required term है, it is, so you can say 132 more than 54th term is 65th term, ठीक है। 54th टर्म में 132 ऐड कर दे तो कौन से नंबर की टर्म होगी, 65th टर्म होगी। इज इट क्लियर? इट्स एनफ फॉर टुडे।